Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of March 2022, Wednesday. Motivation of the day is never regret anything that made you smile. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है, जहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स नाउ अलाउड टू get the exposure into US stocks from IFSC. Second article is related to the net export, high net export pressure on CAD. तीसरे आर्टिकल में हम रूरल वेजेस और लेबर क्रंच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं. फोर्थ न्यूज़ इज ऑल अबाउट द रशिया बैन और रशिया रिमूवल फ्रॉम ग्लोबल इंडाइसेस and its impact on India. Apart from discussing all these major news, we will also discuss some other news clips that are related to GST mop-up, NSE FMCG index and crude oil prices. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. इंडियंस कैन नाउ डबल इन यूएस स्टॉक फ्रॉम आईएफएससी. मार्च 3 से जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन ट्रेड इनटू द सेलेक्ट यूएस स्टॉक्स थ्रू एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, दैट इज एनएससी आईएफएससी. एनएससी आईएफएससी इज द wholly owned subsidiary of National Stock Exchange of India और एनएससी. तो मार्च 3 के बाद से जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनको कुछ सेलेक्ट यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाएगी, एंड दे कैन सिंपली ट्रेड थ्रू NSE International Exchange. So how this particular mechanism work? Investor can simply invest in NSE IFSC receipts on US stocks, and that will be in the form of unsponsored depository receipts. In short, we call it DRs. अब डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इसको समझाऊं, DRs आर बेसिकली अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स. नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स होते हैं issued by a bank that representing shares in the foreign company traded on local stock exchanges. So these are the financial instruments generally issued by a bank that represent the shares in the foreign company that traded on local stock exchanges. And this DRs give the investor an opportunity to hold the shares or stock in the equity of the foreign country, and definitely give them an alternative to the trading on international market. तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में जो डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, जनरली एक फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो अदर कंट्रीज में इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर सके. एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ DRs इज द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. इन शॉर्ट वी कॉल इट ADR, and which has been offering companies, investors and trader global investment opportunities since 1920s. तो मैं कह सकते हैं it's the oldest, one of the oldest depository receipts that is offering global investment opportunities since 1920s. तो keywords क्या हैं? It's a negotiable certificate, fiscal certificate, and it allow the investors to simply get the exposure into the international market or to get the equity share of foreign company without the need to trade directly on a foreign market. So generally investors इसे portfolio diversification के लिए DRs या depository receipts को use करते हैं, buy करते हैं. And it is one of the convenient and less expensive form of purchasing stock directly in the foreign banks or foreign markets. तो ADR, GDR ये बहुत कॉमन फॉर्म है डिपॉजिटरी रिसीट्स के, जो इंटरनेशनल मार्केट में आज के टाइम में चल रहे हैं. So when I say unsponsored depository receipts, or sometime you all might have heard that unsponsored American depository receipts. So when I say unsponsored, it simply means that issued by a depository bank without the involvement, without the participation or the consent of a foreign company. But yes, these security trades on the over-the-counter market rather than any particular stock exchanges. So NSE International Exchange is now going to give the or issue the unsponsored depository receipts और DR. इनिशियल लेवल पे जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50 US स्टॉक्स जैसे कि एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन, नाइकी, PNG, कोका कोला, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को इंक्लूड करेगी. And definitely these are the established companies,
सो इनिशियली 50 स्टॉक से यूएस स्टॉक से स्टार्टिंग होगी इस पर्टिकुलर सर्विस की, और जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन एक्चुअली डू द ट्रांजैक्शन ऑन एनएससी आईएफएससी प्लेटफॉर्म अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, दैट इज LRS. So LRS के थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन एक्चुअली ट्रांजैक्ट इनटू दीज 50 यूएस स्टॉक्स as per the limit prescribed by RBI, which is currently $250K per year. It means not more than this limit. तो retail investors जो हैं वो इस limit को cross नहीं कर सकते. They can use the LRS system for doing transaction into these 50 stocks to NSE, IFSC. And resident investors will have to open the demat account at IFSC, और जो भी स्टॉक रिसीट्स होंगी, डीआर रिसीट्स होंगी, दे विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन असेट्स फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न. तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर फॉरेन असेट्स के फॉर्मेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स एट द स्लैब rate, while the long term capital gains will be taxed at 20% with indexation. तो ये इनका टैक्स को लेकर के ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे इंडियन अथॉरिटीज. तो इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, वो मोर और लेस जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने वेलकम किया है इस मूव को. और कईयों का ये कहना है कि जो बिजनेस मॉडल एनएससी आईएफएससी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ अ निश मार्केट. अभी के लिए जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ये प्लेटफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम इट दिस विल ऑल्सो हेल्प द इंडियन इन्वेस्टर्स टू डाइवर्सिफाई देयर portfolio. Apart from it, this particular mechanism will provide the easy and low cost investment into the foreign market, more specifically into US markets. और पिछले कुछ टाइम से इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो चाहे वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा ट्रेंडी हो गया है. तो दिस विल प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म. इट इज़ एन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव इट विल हेल्प द इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन टू द ग्लोबल स्टॉक्स, डाइवर्सिफाई देयर portfolios with a convenience and low cost. And these are the key points that you can go through it, that these are stocks need to be traded in US dollars, minimum price involvement, no fixed price band applicable, and what is the dynamic price band for such receipts, and trading to be done over 2 calendar years. So these are the highlights. You do not need to go into the technical details of it. You can just have the understanding of key point that how NSE is going to offer this particular international exposure to Indian investors. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4 of Business Standard. High net export signals rising pressure on CAT. CAT stands for current account deficit. As per the recent data, India's CAD, that is current account deficit, is going to widen in quarter 3 of financial year 22, with net export ratio touching the highest level in last 3 years. So as per the GDP data, the export ratio has touches the point of 3.9% of gross domestic product in October and December quarter of financial year 22, and experts are believing that growing geopolitical risk and hardening commodity prices could further widen the current account deficit in the near term. It means this scenario is not going to end soon. It will continue for more quarters because of the increasing geopolitical tension between Russia and Ukraine, as well as the increasing commodity prices. जनरली नेट एक्सपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉक्सी कंसीडर किया जाता है. अगर कैलकुलेशन की बात करी जाए तो नेट एक्सपोर्ट इन जीडीपी डेटा बेसिकली कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. So RBI जो डेटा रिलीज करता है, in that net export is generally considered as a difference between import and export of goods and services, and it also factors in private transfer receipts. So private transfer receipts means remittance by Indian employed overseas, so along with the net exports.
और मोस्ट ऑफ द अगर हम ट्रेंड में देखें तो इंडिया जो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता है. इंडियाज कैट स्टूड एट 1.3% ऑफ जीडीपी इन सितंबर क्वार्टर कंपेयर टू अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.9% ऑफ जीडीपी इन जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. बट पैंडेमिक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा हमें पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कह सकते हैं करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला था कुछ क्वार्टर्स में. और कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो डेटा रिसेंटली रिलीज हुआ है ये क्लियरली जो वेव आई है, थर्ड वेव कोविड की आई, या जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसको क्लियरली रिप्रेजेंट करता है. जिस तरह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो इट वाज क्लियरली विजिबल कि जो एस्टिमेट्स हैं वो आगे इसी तरीके से आएंगे और आगे आने वाले टाइम में ये ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहेगा जहां पर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा वाइडन होगा. As per one of the economists at research from Quantum Eco, the information in GDP data and his estimates for invisible, he sees India's CAD widen to 2.9% of GDP in quarter 3 from 1.3% in quarter 2. तो 1.3% कैट था क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में. हालांकि अभी क्वार्टर 3 का डेटा आना है, बट ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.9 to 3.0% अप्रॉक्सीमेटली. तो अभी डेटा फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है, बट ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन कि क्वार्टर 3 में अप्रॉक्सीमेटली 4% तक इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जा सकता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एज वेल एज द जियोपॉलिटिकल टेंशन. और सिंपली क्रूड ऑयल के जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है. और कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली अगर होल फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6% ऑफ जीडीपी तक जा सकता है, जो कि पिछले साल 0.9% के सरप्लस में था. यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया वॉज इन करंट अकाउंट सरप्लस विद 0.9%, और इस फाइनेंशियल ईयर 22 में इट इज गोइंग टू बी द डेफिसिट ऑफ 1.6% ऑफ जीडीपी. हालांकि डेफिसिट जो है वो इंडिया का एक जनरल ट्रेंड है इन केस ऑफ करंट अकाउंट. और जैसा कि कई सारे एक्सपर्ट कह ही रहे हैं कि जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ये जो प्रेशर है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर, दिस विल परसिस्ट अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं हुए. एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ नेट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. So we are at a deficit position with -3.9. इट मीन्स जो हमारा इम्पोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है. और इसका जो रीज़न हमने बताया, प्राइजेस, क्रूड ऑयल प्राइजेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस, टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारे इसके रीज़न है. डिस्ट्रप्शन टू ग्लोबल सप्लाई चेन, रिकवरी आफ्टर पैंडमिक, देयर आर सो मैनी रीजंस. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो रहा है, इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट बिल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. फॉल इन रूरल वेज, लेबर क्रंच हिट कंस्ट्रक्शन. अपने लास्ट 2 न्यूज़ एनालिसिस में हमने एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने जीडीपी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, कौन कौन से सेक्टर्स ने कितना कितना ग्रो किया. अगर आपने नहीं देखा है तो इस न्यूज़ को समझने के लिए पिछले 2 दिन या फिर आप मंडे की एनालिसिस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर मिल जाएगा. अब देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है. फॉल इन रूरल वेज, लेबर क्रंच हिट कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इससे पहले की न्यूज़ एनालिसिस में जब हम एनएसओ का डेटा डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो क्वार्टर 3 में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है. सर्विस सेक्टर को छोड़ करके बाकी जितने मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो या कंस्ट्रक्शन हो, तीनों में ही हमने हिट देखा था बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन फैक्टर एज वेल एज द अदर इंटरनेशनल एंड नेशनल रीजंस. तो अब उसी डेटा की एनालिसिस हो रही हो. इंडस्ट्री वेटरन्स, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वेटरन मीन्स एक्सपर्ट जो हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह से रूरल वेजेस में डिप देखा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट, unprecedented rain and labor shortage in urban areas, all these are the key reasons for the contraction of 2.8% into the construction sector during quarter 3 of financial year 22. तो ये रीजन साइट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स फॉर फॉल इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्पेसिफिकली
in Q3 of financial year 22. तो रूरल वेज जो है वो डिप करी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में लेबर जो था वो अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जो रेन हुई है वो बहुत अनइवन हुई है, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रेन का जो अमाउंट रहा, जहाँ पर नहीं होती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई। तो ये सारे जो रीज़न हैं इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर इम्पैक्ट हुआ, जो कि 2.8% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन Q3। हालांकि जो कॉर्पोरेट्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टू बी पिकअप ड्यूरिंग द करंट Q4 में ऐसा एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि जो वर्क अफेक्टेड रहा बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर वो अब रिज्यूम करेगा। हालांकि कई सारे का ये भी कहना है कि जो डिपेंडेंट सेक्टर है, लाइक अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि Q4 में इंक्रीज करेगा, तो जो अलाइड सेक्टर है उसके साथ में जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, उनकी डिमांड पिकअप करनी चाहिए। लेकिन सीमेंट और स्टील सेक्टर को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड पिकअप नहीं हो रही है, स्पेशली सीमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो Q4 है उसमें अभी ये एंटिसिपेट करना कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिकवर करेगा थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो अभी भी बढ़ रही है। जो कमोडिटी के प्राइसेस है, चाहे वो स्टील हो, मेटल हो, सीमेंट हो, जो भी रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उसकी कॉस्ट अभी भी बढ़ रही है। तो कंपनी में पोस्टपोन देयर कंस्ट्रक्शन प्लान्स फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जिस तरह से सीमेंट की या रॉ मटेरियल की कॉस्ट की डिमांड नहीं पिकअप होती हुई दिख रही है, उससे ये कहना अभी सही नहीं होगा कि Q4 विल बी अ रिकवरी क्वार्टर फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और जिस तरह से रूरल वेज डिप हुई हैं, जिस तरह से इंडिविजुअल्स के हाथ में डिस्पोजेबल मनी जो था वो उसमें कमी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसका सीधा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन डिमांड, और स्पेशली रूरल डिमांड में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, रूरल वेजेस डाउन हुई थी, इंडिविजुअल्स के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स वो जो डिमांड में इवेंचुअली कन्वर्ट होती है, सेविंग में नहीं। तो इसकी वजह से डिमांड डाउन हुई, और मोर स्पेसिफिकली रूरल एरिया की डिमांड डाउन हुई। एंड दिस वाज इन एडिशन टू द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन्स थर्ड वेव ऑन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज पर वन ऑफ द एक्सपर्ट, और जिसका इम्पैक्ट हमें सीमेंट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा, average nominal agriculture wage growth during the April and November period had declined to 2.3% into this fiscal year, जो कि पिछले साल 6.6% था। तो जो एवरेज नॉमिनल एग्रीकल्चर वेज ग्रोथ रही वो 2.3% रही इनटू दिस फिस्कल ईयर, या हम बोल सकते हैं कि 2.3% तक डिक्लाइन कर गई Q3 तक, जो कि पिछले साल 6.6% से ग्रो कर रही थी। और यही सेम ट्रेंड, सिमिलर डिक्लाइन हैज बीन सीन इन द नॉन फॉर्म वेजेस, यही सेम ट्रेंड हमें जो नॉन फॉर्म वेजेस हैं उनमें भी देखने को मिला, दैट फेल टू 1.8%, जो पिछले साल 7.9% था अप्रैल एंड नवंबर 2022 में। तो फॉर्म वेजेस, नॉन फॉर्म वेजेस दोनों ही केस में वेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, वेजेस डिक्लाइन हो रही हैं, एवरेज वेजेस, जिसका इम्पैक्ट हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, या हम बोल सकते हैं जो रॉ मटेरियल सीमेंट स्टील उसमें भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। रिमूवल ऑफ रशिया फ्रॉम ग्लोबल इंडाइसेस में लिफ्ट इंडिया फ्लोज। So West is trying to attack Russia financially. Now Western countries are trying to impose restriction on investment in Russian stock, but global index providers MSCI, FTSE have mooted removal of Russia from their indices. तो स्विफ्ट से रिमूवल के बाद, बहुत सारे सेंक्शन के बाद से अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस हैं, वो ग्लोबल इंडाइसेस से ग्लोबल इंडाइसेस से रशिया को रिमूव करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा जो रशियन स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको भी शट डाउन करने की कोशिश करी जा रही है थ्रू दिस सैंक्शन। और अगर ये सैंक्शन लग जाते हैं, अगर जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI, FTSE अगर इस पर्टिकुलर सैंक्शन को फॉलो करते हैं, रशिया को रिमूव करते हैं फ्रॉम देयर इंडाइसेस, दिस मूव विल लीड टू द बिलियंस ऑफ डॉलर आउटफ्लो फ्रॉम द रशिया। बहुत सारा अमाउंट का जो पैसा है वो रशिया से आउटफ्लो, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स विल इमीडिएटली लीव द रशिया। और इवन इस न्यूज़ के बाद ही रशियन स्टॉक एक्सचेंज जो भी होंगे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अनसर्टनिटी जनरेट हो रही है अबाउट द रशियन स्टॉक्स। तो बहुत ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिलेगा रशिया से।
और अगर रशिया से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं और पैसा डालेंगे, तो दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, कि पोर्शन ऑफ दैट आउटफ्लो में इंटर इनटू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसमें इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। दिस इज बिकॉज इंडियाज weighing in MSC EM and other widely tracked indices will edge higher if Russia is removed. तो अभी रिसेंटली जो MSCI है, दैट हैज सॉट द फंड मैनेजर्स फीडबैक ऑन द करंट लेवल ऑफ एसेसिबिलिटी एंड इन्वेस्टेबिलिटी ऑफ रशियन इक्विटी मार्केट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अभी फिलहाल क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है हर चीज़ की। जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, दे आर मूटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिमूवल ऑफ रशिया फ्रॉम देयर इंडेक्सेस, और अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी द ह्यूज लॉस फॉर रशिया एंड मे बी द प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर इंडिया. But yes, there are certain factors that will actually impede the stock investment into Russian markets, include the deterioration into the convertibility of the ruble into foreign currency because closure of Moscow Stock Exchange and curbs on सेल्स ऑफ सिक्योरिटी. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करेंगे जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, कि कहीं इस पर्टिकुलर बैन के प्रोसेस में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान नाउ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट एक्चुअली इम्पीड स्टॉक इन्वेस्टमेंट इनटू रशियन मार्केट्स. तो जो फंड मैनेजर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे एक्चुअली फीडबैक मांगा है MSCI ने कि किस तरह से जो रशियन इक्विटी मार्केट है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्या प्रोसेस रखी जाए, क्या उनको बैन या रिमूव किया जाए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टैंड अलोन मार्केट स्टेटस पे. सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर डिलीशन विल टेक प्लेस, वेदर इट टेक प्लेस और नॉट. दिस इज अ रशियाज डिलीशन विल लेड टू इन्फ्लो इनटू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम. तो जो रशिया से जो भी आउटफ्लो होगा, जो रशियन स्टॉक मार्केट, जो रशियन जो एक्सपोजर है, तो जो भी आउटफ्लो होगा वो ताइवान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, हांगकांग और मैक्सिको, जो ये जैसे अदर इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मार्केट हैं, उनमें वो फ्लो जा सकता है. फिलहाल दिस इज द एक्सपोजर और weighing in terms of percentage. अब देख लेते हैं some other news clips. GST mop-up tops rupees 1.3 trillion mark for fifth month. So goods and service tax collection in the month of February increased approximately 18%. पिछले साल के कंपैरिजन में 18% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन में. फरवरी के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1.33 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ, क्रॉसिंग द 1.3 मिलियन मार्क्स फॉर द फिफ्थ टाइम कॉन्सिक्वेंटली एज पर अवर फाइनेंस मिनिस्ट्री. और अगर जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दैट समवेयर इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक रिकवरी. सो गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सपेक्ट दैट द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 23 विल बी अराउंड 1.25 ट्रिलियन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलेक्शन. कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में जो मंथली जीएसटी कलेक्शन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 ट्रिलियन के आसपास होगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर चुकी है. तो जो फरवरी का मॉपअप है वो सिंपली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन देयर वाज अ लोकलाइज्ड लॉकडाउन ड्यू टू द ओमिक्रॉन वेव. तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिला. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फरवरी और मार्च में कलेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. हालांकि जनवरी में कलेक्शन 1.4 ट्रिलियन था. तो ये कहा जा सकता है कि जनवरी में इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला लॉकडाउन का, जो कि जनवरी का जो डेटा था वो दिसंबर की एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था. तो जनवरी में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला. हालांकि ओमिक्रॉन से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अदर फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ा. सो एनालिस्ट आर कॉन्फिडेंस दैट जीएसटी कलेक्शन फॉर द करंट फिस्कल ईयर विल क्रॉस द बजट टारगेट, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट, गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NSE FMCG index hits 9 months low but metal firms soar. So रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें कंज्यूमर स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है. हैज इट टर्न द फॉर्चून ऑफ मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स.
तो एफएमसीजी पर जो इम्पैक्ट दिख रहा है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द मेटल फॉर्म्स। जो मेटल फॉर्म्स के जो स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि कल की न्यूज़ पेपर में ये भी दिया था कि जो मेटल फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी रशिया और यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। जो इंडिया का जो मेटल और का जो एरिया है उसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज ही करेगा और सीधा इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है कि एफएमसीजी जो है वो 9 मंथ्स अपने पिछले 9 मंथ्स के लोवेस्ट नंबर पे है, जबकि मेटल फॉर्म्स जो हैं उनके जो स्टॉक्स हैं तो वो इंक्रीज कर रहे हैं। द बीएसटी मेटल इंडेक्स विच ट्रैक द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंट्रीज टॉप मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स सच एज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, वेदांता कोल इंडिया क्रॉस विद द मार्केट कैप ऑफ 9.5 ट्रिलियन, जबकि पिछले मंथ से अप्रॉक्सीमेटली 7.3% ज़्यादा है। और वहीं जो एफएमसीजी है उसका स्टॉक 2.8% तक फॉल किया इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ यानी मंथ ऑफ जनवरी। तो 7.3% का इंक्रीज मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, 2.8% का जो डिक्लाइन है वो हमें एफएमसीजी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और इसका रीज़न ये है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट जो इंडिया का मेटल सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा एंड दैट इज़ वाई अर्निंग्स फ्रॉम मेटल स्टॉक्स आर एक्चुअली गेनिंग मोमेंटम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रूड में स्टे अराउंड $100 फॉर 3 मंथ्स CAPA। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो आगे आने वाले कुछ महीनों तक $100 के मार्क पर ही बने रहेंगे। इट मीन्स अगर ये हॉस्टिलिटी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अगर ये कम भी होती है, इसके बावजूद भी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो नॉर्मलाइज होने में टाइम लेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आगे आने वाले 3-4 महीनों तक जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय एविएशन ऑन इंडस्ट्री कंसल्टेंसी CAPA. Meanwhile, Brent crude hit the $107 per barrel, costliest in the last 8 year। और यही हमें टेक्सास में भी देखने को, टेक्सास के केस में भी देखने को मिलेगा। एंड दिस इज बैड न्यूज़ फॉर एयरलाइंस इन इंडिया एज द फ्यूल अकाउंट्स 40% ऑफ देयर एक्सपेंसेस। और चूंकि पैंडेमिक की वजह से जो एविएशन कंपनीज थी वो ऑलरेडी इम्पैक्ट हुई थी, अभी रिलैक्सेशन ईज आउट हुआ था और उनमें रिकवरी शुरू हुई थी, फुटफॉल पैसेंजर काउंट शुरू हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन ATF। व्हाट इज ATF? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि एविएशन इंडस्ट्री का 40% एक्सपेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू be the heavy burden on aviation if the ATF price is actually shooting like this। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो ATF प्राइस इज अप बाई 57%। ऑलरेडी 57% इंक्रीज देखने को मिल रहा है एविएशन टर्बाइन फ्यूल में। सो दिस इज द बैड न्यूज़ फॉर एविएशन इंडस्ट्री। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.